So, hi, good evening, everyone. First of all, I really need to ask if everybody is enjoying the Friday evening and excited for today's talk. I'm sure you are, and I am very excited. Someone recently told me that I need to manage my finances better and learn to invest right. So, hopefully, I'm sure this session would be an interesting and informative with multiple benefits. So, we are talking about money today and how to make the money grow. So without further ado, let me introduce today's speaker, Mr. Praveen Sumesra. He's a very seasoned area manager at Franklin Templeton AMC, Ahmedabad, with an impressive 23-year tenure. He's a commerce postgraduate from HACC Ahmedabad. If we talk about Praveen's career trajectory, it includes pivotal roles at Anagram Finance and ICICI Bank before he joined Kothari Pioneer Mutual Fund, which actually later merged into Franklin Templeton AMC. He has this passion of, empowering and educating investors. And so far, he has already been able to reach a massive 100,000 investors through 500 plus seminars. And the count goes on. If we talk about Praveen, he is a cornerstone guiding clients toward informed investment decisions, showcasing a blend of extensive experience and a deep commitment to investor education. Before we start this session, just want to give a very quick view around timeline and set some expectations. This session that we have today would last for approximately 50 to 55 minutes, where Praveen will be talking and taking us through the relevant agenda in first 35 to 40 minutes, and then we will open for Q&A. So it is possible that meanwhile he's explaining something, you have some questions, comments, or queries. But we would suggest or request that please hold on to those or post it in chat maybe, because you might get your answers while Praveen goes through the presentation, and it will also help us in keeping a check on time. One more thing, I think when we are not talking, it's best to keep ourselves on mute. So I think now we can get started, and over to Praveen. You can, go ahead with this interesting session, all yours. Yeah, good evening, Ankit, Rahul, Samhita, for arranging the wonderful session actually. So I still remember actually I got an opportunity to address the IMA Ahmedabad people actually, the employees, all the employees during his retirement actually. It was pre-COVID, and I explained during those time how you can invest your hard-earned money, right? Especially when you retire. So होता क्या है? The basically let me give a perspective on the especially on the FD side. So मैं FD के लिए वही बोलता हूँ because I was a part of the ICICI Bank and I worked there for almost 6 years. So FD ऐसा पैसा होता है, भगवान के पास चला जाता है और वहां से वो चेक करता है कि उसकी एफडी बराबर रिन्यू हो रही है कि नहीं. So that means कि he or she will never withdraw the money because वो continuously FD renew होती है, right? So I am actually 52 years, actually young, and I have done only one time single FD in my life. It is 50,000 rupees, and that is 1 year and 1 day. राइट एक दिन ऐसे ही मैं पढ़ रहा था गूगल बिकॉज आई लव टू रीड समथिंग राइट. तो मैं पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था कि व्हाई शुड आई गिव मनी समबडी एल्स टू मेक मनी फ्रॉम माय मनी. उसी दिन से सोच लिया कि व्हाई आई गिव माय मनी टू बैंक टू मेक मनी फ्रॉम माय मनी. एंड एनीवे हु आर द पीपल हु आर बोरोवर, राइट, दो आर मेकिंग मनी फ्रॉम पीपल्स मनी, राइट. तो फिर मैं ऐसा क्या, मैंने कहा नहीं, अभी पैसा कभी भी एफडी नहीं करने का. एंड दैट डे आई डिसाइडेड नॉट टू रिन्यू एक्चुअली माय एफडी, ऑल्दो इट वाज एन ऑब्लिगेशन, बिकॉज ऑब्लिगेशन होता है वो छोटा होना चाहिए लाइफ में. इट शुड नॉट बी अ ब्लंडर, लाइक सब कोई आके आपके पास से 50 लाख की एफडी मांग ले, दैट इज अ ब्लंडर. एंड इफ यू डू दैट्स अ ब्लंडर. तो वो कभी नहीं होना चाहिए. 2-3 लाख रुपया ठीक है, चलो हो गया है, इट इज ना, वो आ गया. दूसरी चीज, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड heard the name called नितिन कामत, राइट. जेरोदा करके कंपनी है, राइट, वो ट्रेडिंग में है. बहुत अच्छा सा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था. इट वाज ऑन द ट्विटर एक्चुअली, एंड दैट वाज वंडरफुल स्टेटमेंट.
एंड उसी दिन से मेरा भी एक स्टेटमेंट उसी हिसाब से बन गया. सो द स्टेटमेंट विच मेंशन कि उन्होंने लिखा था, बिकॉज व्हेन इट इज ऑन एप्लीकेशन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन जस्ट अ स्विच. एक आप टिक करो और एवरीथिंग विल बी आउट. तो वहां पे लिखा था, वह उन्होंने मैसेज दिया था कि मेरे वहां पे जितने भी लोग ट्रेड करते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, out of this actually 97% people have lost money. 97%. And the 3% people who have not lost, actually they have made less than savings bank account. Indirectly, the people who trade, almost everyone lose money. So मैं उसी को एक अलग से थोड़ा सा आगे करूं, तो वहां पे मैसेज ऐसा जाता है, द पीपल हु नेवर इन्वेस्ट ना, उनके लिए, द इनकेस ट्रेड करते हैं, तो ब्रोकर इज ए person will trade with your money until it becomes zero. Because उसका काम है आपका ट्रेडिंग whether you will make money or not, actually the broker, the other guy will make money. So actually I always say don't trade, invest, invest. But फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आता है कि अगर इन्वेस्ट की बात करते हैं तो भी, तो प्रॉब्लम ये आता है कि not all the people understand the difference between savings, trading and investing. Right, there are three different chapter. So यहाँ पे I'm trying to connect all the three things. Right, so let me just share my screen first. The session's name is actually make your money work for you. So आप काम कर रहे हो या you are working for someone over a period of time, right? You are going to earn, and वो जो पैसा कमाया हुआ है, whether वो आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, और इट विल वर्क फॉर अदर. राइट, वही चीज है, अपने वही डिफरेंशिएट कोशिश करेंगे. एंड व्हाई देयर वाज अ वन गुड रिसर्च अवेलेबल ऑन गूगल, स्पेशली फॉर द इंडिया. आउट ऑफ 140 करोड़ पॉपुलेशन इन इंडिया, 1% of the people of India having 42% wealth. Why so much difference? And if I extend the numbers to the 10%, it says 74% of the wealth having 10% of the people of India. So वो कुछ अलग कर रहे हैं, हाँ, yes, they are doing something different. And why not others? वो क्यों ऐसा है? So we will just dwell more into this कि ऐसा क्या हो रहा है, right? So यहाँ पे it's not about कि मैं आपको यहाँ पे ज्ञान दे दूं कि यार एक काम करो, ये कर लो, ये कर लो. It's not about this. It's all about actually वो क्यों करना चाहिए. अगर करना चाहिए, then how you can make it for yourself, उसकी बात करेंगे, राइट? सो एजेंडा बहुत सिंपल से आई केप्ट वो 6-7 एजेंडा है, बट छोटे छोटे स्लाइड्स में मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन. टाइम्स हैव चेंज, हाउ हैव योर मनी इन्वेस्टमेंट जो आपका पैटर्न है, इट हैज बीन चेंज और नॉट. ग्रीड एंड फियर, right? When it comes to the investing, always greed and fear will be there. Why this decade belongs to India? Why this decade, right? And then opportunity to invest in India, and diversification is essential. And last but not the least, it's a time to change the way we invest. Time have changed, and it's time to change the way we invest. हम एक के बाद एक देखेंगे. Times have changed. What is times have changed? जनरली हमारे फैमिली में हम लोग बात करते रहते हैं. We generally used to hear from our friend circle also, अरे यार जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है. हाँ, जमाना बदल गया है. लेट्स एक्चुअली कहाँ पे बदला है, कहाँ पे नहीं बदला है, राइट? सो बातें बहुत करते लोग कि जमाना बदल गया है, पर एक्चुअली बदला है कि नहीं, राइट? वो देखते हैं यहाँ पे. सो एक जमाना ये था, एक जमाना ये है, राइट? इट्स ऑल, मतलब जो भी फैसिलिटीज मिल रही है ना, वो इट इज कॉल्ड जमाना बदल गया. एंड फैसिलिटीज क्या है? इट कम्स विथ कॉस्ट. इट कम्स विथ कॉस्ट, राइट? एक जमाना ये था, ये जमाना ये है. ऑलमोस्ट फास्ट फॉरवर्ड जमाना आ गया है. ऑलमोस्ट मतलब एवरीथिंग. आई डोंट नो, शायद काफी कम लोगों को, अगर मैं मेरी बेटी, जो 2 बेटी, आई हैव 2 डॉटर, अगर मैं उनको बोलूं कि बेटा दूरदर्शन करके आता है, अभी भी आता है, उनको पता ही नहीं होगा. ऑनेस्टली नहीं पता होगा, ऑनेस्टली, राइट? बट आई एम स्टिल अवेयर ना, वो दिन थे हमारे, राइट, कि ये दूरदर्शन करके हुआ करता था. आज भी है, बट नो बडी वॉच ना. सो जमाना एक्चुअली चेंज हुआ है. एक जमाना ये भी था, बहुत अच्छा जमाना था. इट वाज 60 years एक्चुअली पीपल यूज्ड टू गेट रिटायर.
एंड लाइफ स्पेन वाज शॉर्ट बाय 75। हम किसी के बात पूछे, अरे वो दादाजी किधर है, तो वो बोले यार ये हार चढ़ चुका है उनके वहां पे, तो भगवान के घर चले गए हैं। सो इट वाज सो सिंपल जमाना, राइट। रिटायरमेंट लाइफ भी कम थी, जॉइंट फैमिली थी तो खर्चे कम थे, डिपेंडेंट चिल्ड्रन पे थे, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के मतलब जो करते रिस्पेक्ट करते थे, वो रिस्पेक्ट भी थी, आज भी है, बट द वे ऑफ रिस्पेक्ट है ना हैज बीन चेंज। And the standard expenses there, limited number of expenses. I still remember my father actually, he was having a shares of LML, and because of he was having a shares of LML, he got a coupon from the LML, and then he bought the LML scooter actually. That means कि actually उनके पास ये था और उसके बाद ये हुआ था ऐसा। And traditional as well as some pension revenues थे। But आज क्या है, right? वो नहीं बोलते आज मेरे पास माँ है, आज क्या है, रिटायर अर्ली। माय गुरु एक्चुअली मेरे जो गुरु, एक गुरु है, आई हैव टू गुरुज एक्चुअली, वन इज गुजराती है, अनदर वन इज सिंधी, राइट। द गुजराती गॉट रिटायर एट द एज ऑफ 42 and the another one was retired at the age of 51, and actually I decided to retire by 50-52। अगर मेरे को आज भी ऐसा बोले तो प्रवीण नहीं आना है कल, I don't care, reason, because I have made enough investment balance। It's not a bank balance, it's an investment balance। बैंक बैलेंस खलास हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस खलास नहीं हो सकता, because through investments you will be able to get a second revenue, right, which is very important। So people have aspiration of retire early because of medical becomes so advanced, right। आप चाहो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी कर दो कि मेरे को जल्दी ऊपर जाना है, बोले नहीं, I'll not allow, I'll not allow, right? That means 90 तक जाना है, 90 तक जाना है। That means retire जो है, retirement time जो है ना, it can be as big as anything else, right? बहुत लंबा जा सकता है। And then nuclear family, and nuclear family होता है expense फटाफट increase होते हैं, ज्यादा होते हैं ना, बढ़ जाते हैं, right? So I don't know, शायद आप लोगों को पता हो कि after COVID what has actually happened and why the number of cars, especially in the mid segment, sold heavily, because COVID के दौरान the people who could afford the cars, second car, third car, right, family members को परेशान न हो, इसलिए उन्होंने they've decided to buy another car, एडिशनल कार। एंड आप देखो, क्योंकि मेरे को पता था कि ये होने वाला है, राइट। सो वहां पे नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज बढ़ गई, तो वो बहुत ज्यादा कार्स आ गए। आप देखो कोविड के बाद नंबर ऑफ कार्स है सोल्ड बिग टाइम देन द टू व्हीलर्स। एक्चुअली टू व्हीलर का ग्रोथ नहीं है, इट इज अ फोर व्हीलर। सो न्यूक्लियर फैमिली, इंडिपेंडेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे का यार वो मैं अपने हिसाब से रहना चाहता हूँ, बाकी छोड़ो उनका, वो देख लेंगे वो सब। एंड देन एस्पिरेशनल इन्फ्लेशन एंड ट्रेडिशनल, धीरे धीरे इट इज बिकम लाइक, मतलब उतना अच्छा नहीं सेट हो रहा है। सो मार्केट लिंक जो है ना वो सही जा रहा है। सो दो डिफरेंट, वो नहीं दो भारत चल रहे हैं, उसी तरह से दो रिटायरमेंट, एक पहले का अलग था, नाउ द करंट रिटायरमेंट इज समथिंग डिफरेंट, ये दोनों अलग है, राइट। Actually, let me just go into delve into this investment cycle specially. Are we thinking the same about for our investments? Let's check, right? Answer is no. Answer is absolutely not. हम लोग कल भी, right, property anyway, it's close to my heart because I need to मतलब to take care of my family, and that is why I need a property। And that's why most of the people actually उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, whether it is उनके नीड हो या फिर सोशल दबाव बना हो, अरे ये क्या कर रहा है, लाइक मैं, राहुल नोज मी वेरी वेल, राइट। मैं डिस्पाइट एक्चुअली आई वाज हैविंग अ मनी, right, because I've learned from something, the one of the guy actually, he is from Bangalore, right, he's a trainer, big trainer actually, right। तो मैं ऐसे बहुत पहले सुन लिया था उनको, एंड आई डिसाइडेड कि यार एक काम करो, पहले पैसा बना लो, बनाने के बाद आप कुछ लेना है तो लो, ताकि अच्छा सा ले, right। And that is why I decided to live in a rented house for 13 years, 13 years, right। No doubt I used to get a pressure from family and friends, यार कैसा बंदा है, पैसा होने के बावजूद भी यार यू स्टे इन
ऐसे घर पे इस तरह से। मैंने कहा यार क्या फर्क पड़ता है यार, आई नो मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। इट्स माई लाइफ, राइट, इट्स नॉट योर लाइफ, इट्स माई लाइफ। बट हम लोग ऐसा नहीं सोचते, वी एक्चुअली क्या होता है उसमें भी करते हैं, बाकी लोगों को सुन लेते हैं, विच इज बैड। बट रेस्ट देन नेक्स्ट व्हाट, प्रॉपर्टी के बाद सीधा गोल्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट। तो लीस्ट नंबर ऑफ जनरेट्स जो रिटर्न जनरेट करता है वहां पे मैक्सिमम पैसा है। सो कल भी आज भी सेम। सबसे ज्यादा पैसा किधर बना, बोले इक्विटी, पता है सबको, यस एब्सोल्युटली पता है। उसके बावजूद भी पैसा कहाँ पे है? So this is the latest data, 31st December 2023. As per the RBI data, bank deposits in India total is 200 lakh crore. It's a big one. 200 lakh crore. And उसमें भी बैंक में क्या है? Every 10 year, there is a rule in India, especially for the bank deposits. Every 10 year, right? तो हर 10 साल पे 2% एफडी का रेट नीचे आएगा। आप देखा, वो वही हुआ है। एंड डिस्पाइट दिस, लोग यहाँ पे है क्यों? इट्स लाइक nobody wants to cross the boundary. किसी को कुछ नया करना नहीं है। एंड दोज हु एक्चुअली हैव ए, मतलब कुछ नया करने की कुछ ख्वाहिश होती है ना, वो अलग कर लेते हैं। एंड दीज आर द पीपल हु आर 1% पीपल ऑफ द इंडिया, like having a wealth of 42% of the wealth of India. So वो अलग करते हैं। Total wealth in India as of now is 900 lakh crore, 900 lakh crore। उसमें से आप सोच सकते हो कि only 1% people having a wealth of 42%, right, which is very important। So एक इधर है, दूसरा भारत इधर है, राइट। अब देखो नीचे वाली लाइन जो है ना, दिस इज ए जीसेक लाइन। जीसेक इज नथिंग, इट्स रेप्लिकेशन ऑफ द बैंक एफडी, राइट। वहां पे पिछले 20-22 साल में द मनी हैज ग्रोन टू 4 times। एंड वेरी सिंपल रूल, 4 times रूल ये बढ़ाने का, आपका 72 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू टाइम विल टेक टू मेक इट डबल। वेरी सिंपल। अगर 60% एफडी का रेट है, आप 72 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 10 साल लगेंगे पैसा डबल होने में। वही हुआ है, राइट। और उसके ऊपर गोल्ड, बिकॉज ऑफ द एक्चुअली रूपी गॉट डेप्रिशिएटेड बिग टाइम्स अराउंड 7-8% एडिशनल ओवर पीरियड ऑफ लाइक 23 years, राइट। बिकॉज बीच बीच में ऐसा दौर आया था जहां पे फ्रजाइल 5 में वी वर पार्ट ऑफ द फ्रजाइल 5, एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्चुअली इट वाज डेप्रिशिएटेड लिटिल बिट हायर, राइट। सो इसलिए अपना गोल्ड का रिटर्न अपने को दिख रहा है। But who made the money the most? It is index, 32 times in last 22 years। आप सोच सकते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल कंपनी, everybody has seen the index growing growing growing। बट बच्चा भी कभी कभी बीमार होता है ना अपना, बट हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और हमारी ख्वाहिश वही होती है कि उनको सही तरीके से वापस लेके आए। इंडेक्स इज नथिंग एल्स, इज इकोनॉमी का एक बच्चा है। इट इज ए इकोनॉमी का एक बच्चा है। कभी कभी वो कुछ अपने जो होता है वहां पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, उसके कारण भी कभी गिरता है। सो इट्स नॉट ओनली इंडिविजुअल प्रॉब्लम वी आर इन द कंट्री प्रॉब्लम, इट्स समटाइम्स एक्चुअली हम लोग बाहर के कारण भी हर्ट होते हैं। और बाहर का कारण अगर स्ट्रांग नहीं होता है तो इमीडिएटली हम लोग अच्छा वापस कर लेते हैं, right? And it has already happened. I think people would have remembered the time of the actually 2008-9 GFC, where there was not a single company in India जो कंपनी उठी हो, एब्सोल्युटली नॉट। एंड एट दैट टाइम राहुल नोज एक्चुअली मी वेरी वेल, मैं आई वाज अ सैलरीड पर्सन। मैं हर महीने एक, मैं कभी मैं वो है नहीं मेरे में उसमें ऐसा कि भाई ये कोई भगवान आके कर देगा, ऐसा नहीं है। ना ही मैं आस्तिक हूँ, ना ही मैं नास्तिक हूँ। वेरी सिंपल, सिंपल चीज क्या है, उस दिन हर महीने नहीं, वो आज ही जैसे वो महाशिवरात्रि है, तो अमिताभ बच्चन नहीं, वो एक दीवार मूवी में लास्ट में चला जाता है ना, लास्ट में गया था, तो मैं उसी टाइम पे जब मेरे को मेरा बेनिफिट दिखे ना, तब मैं सोचता हूँ ऐसा। और हर महीने एक्चुअली मैं जो श्रीफल होते हैं नारियल, वो हर महीने वेट करता था, आज भी मार्केट गिरा हुआ मिले मेरे को, आज भी मार्केट गिरा हुआ। व्हाई? बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट पैटर्न चल रहा था और अच्छा जा रहा था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट 9 मंथ में वापिस इंडेक्स रिकवर हो गया था, बिकॉज इंडिया में कोई कंपनी का प्रॉब्लम ही नहीं था ना। आई कुड ओनली गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर 9 मंथ टू इन्वेस्ट बिग मनी
ड्यूरिंग दोज पीरियड एक्चुअली, तो ऐसा होता है। तो आप कैसे सोचते हो, राइट, आप मतलब उसमें आउटपुट कैसे लेते हो, दैट विल डिसाइड एक्चुअली वेदर यू विल बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ दिस और नॉट, राइट। सो समटाइम्स यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी को हमको वेलकम करना चाहिए। उस टाइम पे अगर आप कुछ और पढ़ रहे हो, काफी लोग होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं, सो उसके कारण दे आर नॉट एबल टू मेक मनी। सो एंड देन कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन ट्रेडिशनल एसेट्स। एंड ट्रेडिशनल एसेट आपने कहीं ऐसा सुन, लाइक ये जैसे मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी नाम है अपने, कुछ एक आनंद महिंद्रा है, कुमार मंगला नाम है, आपने कहीं पे भी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दे हैव डन सो मच ऑफ एफडी? नो, आंसर इज नो, राइट। उनको पता है कि एफडी वाला पैसा आखिर मेरे पास आना है, नहीं आखिर तुम्हें आना है, राइट। वो पैसा मेरे पास आना ही है, वो पैसे से मेरे को धंधा करना है, वेरी सिंपल। सो एक रूल है, बड़ा पैसा बड़ा बनता है, छोटा पैसा छोटा रहता है, बनता नहीं है, छोटा रहता है, राइट। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द सोच विल डिसाइड कि वेदर यू विल मेक मनी और सामने वाला मेक मनी, वेर। सो डिस्पाइट एक्चुअली यहाँ पे equity has delivered big time wealth over a period of time, not only in India, across the globe, especially in India, because of volatility के कारण वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। बोले यार मैं इन्वेस्ट करूं और मार्केट गिर जाएगा। सो लाइफ इज ऑल अबाउट एक्चुअली, आप देखो आपके 24 घंटे एक सेम नहीं होते, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि पूरी के पूरी आपकी इकोनॉमी सही तरीके से जाएगी? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एक्चुअली। ओनली एक्सपेक्ट द सिमिलर लाइन, सीधी लाइन इज एफडी। वहां पे लाइन कभी ऊपर नहीं होती है, राइट। एफडी में लाइन सीधी रहती है। इट्स लाइक वंस मेरा कार्डियो सीधा हो गया ना, वो वाली लाइन हो जाती है, वहां पे ऊपर नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, राइट। कार्डियो है तो उसका काम है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होना। सो instead of like watching the index on a daily basis, if you decide to watch every year, look at this, right? Am I audible, huh? Sumita? Yeah, okay, okay, yeah. So if you decide to watch your investment on a yearly basis, look at out of last 25 years, only 5 years the index has delivered negative return. Only 5 years. 20 years it has delivered positive return. Why? Because कंपनी का काम है प्रॉफिट करना। प्रॉफिट कहाँ से आते हैं? हम सब खाते हैं, हमारे एस्पिरेशन है, हमारा एस्पिरेशन एक्चुअली ये कंपनी को बेनिफिट देता है, राइट। सो देर आर सर्टेन टाइम्स एक्चुअली वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आता है। हमारा काम वही है कि हमको वहां पे बने रहना, एंड टू मेक इट क्या करना पड़ेगा कि हमको वहीं पे वी हैव टू कल्टीवेट द डिसिप्लिन विद इन आवर सेल्फ, राइट। Let me share, right, my own SIP, right. SIP actually it was started by Franklin Templeton in India, right, but my own SIP has already completed 23 years in India. 23 years, and it's a big time, it's a very very long, right. But नहीं होता है यार, तुम थक नहीं गए? अरे कहां से थकूंगा, शादी करने के बाद कौन थकता है, राइट, उसको निभाना पड़ता है, राइट। एंड शादी में ऑनेस्टली मतलब मेरे राहुल से काफी अच्छी बात करते रहता हूँ, मैं मस्ती करता रहता हूँ यार, मैरिज इज अ ब्लाइंड गेम। डिस्पाइट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड we continue to play and we used to actually get the best out of it, right. And investing is not at all blind game. You are aware everything what is going to happen in your life over a period of time, economy में क्या होना है, किस तरह से जाना है, you will be able to see and judge also to some extent. And despite this we don't invest, right, because हमारी सोच में there is a difference, वो सोच हमको बदलनी पड़ेगी। नहीं तो अदरवाइज वी विल एक्चुअली बी रिमेन बिटवीन फियर एंड ग्रीड के बीच में रहते ही जाएंगे। वो पीसते चक्की, पीसिंग पीसिंग नहीं, वो एक मूवी में आया था, इस तरह से जाएगा। और उसके अलावा क्या चीज है जो हमारा डिसीजन में प्रॉब्लम करता है? एक, जनरली हम हमारे दोस्त लोगों से बात करते हैं, यार कुछ नया है, राइट, कुछ टिप है। टिप में इन्वेस्ट नहीं करने का, बिकॉज द मोमेंट टिप आएगी मतलब टिपाई जाए, गुजराती में एक वर्ड है, टिप में टिप टिप जाओगे, खत्म हो जाओगे, राइट। दूसरा, कुछ लोग यार लेट मी थिंक अबाउट द कॉर्पोरेट रिजल्ट, इसका क्या आया, इसका क्या है। अरे कहाँ से, वो कोई भी कॉर्पोरेट होता है ना, वो रिजल्ट तो एवरीडे आता है उसका, देखो आप, बट
वो एवरी क्वार्टरली डिक्लेयर करता है, बट उसका प्रोग्राम जो होता है ना वो 5-5, 10-10 साल का प्रोग्राम होता है कि मेरे को ये 5 साल में कैसा ग्रोथ देना है. एंड देर आर सर्टेन पीरियड्स it might not be able to deliver the what it they have projected actually, but still they continue to do the same, right? So कुछ लोग उसी पे अटकते रहते हैं. कुछ लोग होते हैं बोले अरे यार सब कुछ सही हो जाने दो, ग्लोबल अभी प्रॉब्लम हो रहा है. मैं बोलता हूँ कितना प्रॉब्लम, देयर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. 190 कुछ ना कुछ चलता रहेगा. व्हाई यू वेट फॉर एवरीथिंग टू बी निकम नॉर्मल यार. एंड जब नॉर्मल होता है ना, वन नीड टू रेडी टू पे अ प्राइस, क्योंकि कंफर्ट की कॉस्ट होती है, राइट? जब कंफर्ट नहीं होता है ना, यू विल बी एबल टू गेट अ बेस्ट बार्गेन. ये होता है, लोग ये नहीं समझते, राइट? फिर एक और होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, राइट? वो सबको नहीं जाना चाहिए. लोग ज्यादातर मैक्रो, अरे सब लोग सही बाहर हो जाए, सबका वैक्सीनेशन क्लियर हो जाए, उसके बाद लेट मी डिसाइड टू इन्वेस्ट. क्या बात कर रहे हो, राइट? एंड देन लास्ट में जाएगा अरे राहुल, हाँ ओके इन्वेस्टमेंट करना है यार, अभी सब मेरा ठीक हो गया ऐसा लग रहा है. एक्चुअली लाइक साउथ इंडियन मूवी होता है ना, आई लव वॉचिंग साउथ इंडियन मूवी ऑनेस्टली. रीजन, बिकॉज मैं कहीं पे भी देख सकता हूँ, पीछे उल्टा करके भी देख सकता हूँ, एंड आई एंजॉय द मूवी मोस्ट. रिवर्स देखो, आगे देखो, बीच में से देखो, बाहर घूम के आओ, वहीं से वापस चालू करो, यू एंजॉय एवरी टाइम. Actually what you need to do as an investor, right, for a period of time, ये जो पांचों के पांचों तत्व जो पड़े हुए ना, you have to take it as a South Indian movie in your life. You'll never get feel, never. आपको मजा ही लेना है. कुछ भी मार्केट नीचे गिरा, हाँ हाँ अच्छा ओके ओके ओके, ऊपर गया, हाँ हाँ लेट मी एंजॉय लेट मी एंजॉय. अच्छा सरकार बदल गई, अच्छा नया कोई आने वाला है, ठीक है देखते हैं, वो तो उसको भी क्या रहने वाला है, राइट? वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, राइट? बट अगर हम लोग नहीं करेंगे, देन देर इज ए इमोशन साइकिल्स. एक्चुअली ये जो चार्ट है, वी जनरली यूज टू सी ऑन एक्चुअली एवरीबॉडीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, राइट? वो वहां पे दिखते रहते हैं यहाँ पे. बट it is nothing to do with stock market. It's like our dopamine. It's dopamine. क्यों? बोले ये जो डोपामाइन होता है, जहां पे अपने को ऐसा फील देता है, लाइक मैं जब बात करता हूँ, राइट, वी हैव ए लिमिटेड टाइम, इसलिए मैं ही बोलूंगा यहाँ पे, अदरवाइज आई यूज टू गेट कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन. बट जैसे काफी लोगों को पता नहीं है कि सिल्वर अक्टूबर 2012 इट वाज 75,000 प्राइस. एवरीबडी वाज सेइंग ओ 1 लाख जाएगा, 1 लाख जाएगा. अभी आफ्टर 12 years इट इज नॉट 75,000, राइट? इट इज लाइक जीरो रेट. इज कॉस्ट, आपकी कॉस्ट का 12 साल. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गोल्ड प्राइस, जाके एक बार चेक कर लो. इट वाज 33,000 इन अक्टूबर 2012. नाउ इट इज 60, लेस देन 66,000. दैट इज 12 साल में डबल. कुछ नहीं पैसा बना 12 साल में, कुछ पैसा नहीं बना. इट इज लेस देन 6% CAGR रिटर्न, अगर पिछले 12 साल का मैं गिनूं तो, राइट? बट हमारा क्या होता है, एक्चुअली हम लोग जो सोना लेते हैं ना, बेचने के लिए नहीं लेते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है ओ पैसा बढ़ता है, पैसा बढ़ता है. द मोमेंट लाइक यो हम लोग जैसे वो क्या शादी में ऐसा होता है, नहीं नहीं कब छुट्टा छेड़ा लेंगे, नहीं वो नहीं होता है, इसलिए वहां पे वो भी नहीं होता है. सिमिलर यहाँ पे भी. बट वेन वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इमीडिएटली हमारा ये आ जाता है, अरे यार कब बेचे, क्यों बेचे भाई? भाई आपने कभी मुकेश को देखा बेचते हुए? आपने गौतम को देखा बेचते हुए? आपने आनंद महिंद्रा को देखा बेचते हुए? नहीं बेचेंगे तो व्हाई शुड आई सेल यार, व्हाई, राइट? सोच ये होनी चाहिए, तो ही पैसा बनेगा. अदरवाइज क्या होगा, ये नॉइज जो है ना, ये इसी तरह से चलता है कि आई गॉट अ स्टॉक हियर दैट कुड रियली एक्सेल. दूसरा सुनेगा क्या, एक्सेल, एक्सेल, और एक्स निकल गया क्योंकि नहीं दे रहा है, तो सेल 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 एंड एवरीथिंग बस्ट. एंड देन सेल, ओ माय गॉड, आई, यस इट्स गुड बाय, आई विल नॉट, इट्स अ मैडनेस. या. So from 1947 to 2013, out of 195 countries, we have managed to reach a part of top 10 countries in the world. It's not an easy task. Now we are part of top 5 and we are striving for part of top 3. ये क्या है? What is GDP? Right?
इंडिया में आउट ऑफ 140 करोड़ पीपल, एक्चुअली 1% के बाद को पता ही नहीं है कि जीडीपी क्या है। जीडीपी इज नथिंग एल्स, इट्स योर स्पेंडिंग पावर। इट्स योर स्पेंडिंग पावर। द मोर यू स्पेंड, मोर यू डेवलप। अपने लिए भी अच्छा करोगे, सबके लिए अच्छा करोगे। सो ये होने वाला है यहाँ पे, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आउट ऑफ 140 करोड़ पॉपुलेशन इन इंडिया, 100 करोड़ पीपल आर अबाउ 18 age. These people having a great aspiration. Like, let me take an example of one of the country called Japan. 70% of the people in Japan having a more than 70 age. Naturally, aspiration नहीं होंगे, पैसा होगा. And that's why they used to invest outside their country. So ये GDP है. दूसरा, फास्टेस्ट ग्रोइंग, बिकॉज कोविड के कारण काफी लोगों को प्रॉब्लम हुआ, इंडिया को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट हमारे वहां पे वो कहावत है कि हम लोग नहीं होते, जैसे दो गांव होते हैं ना, जिस गांव में बच्चे बड़े होते हैं ना, उनको पता नहीं चलता है, बट सामने वाले गांव को पता चल जाता है। क्यों? उनको रिश्ता बनाना होता है। सो दैट्स व्हाई यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड बर्ड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। वो लोग बोलते हैं इंडिया में ये है, इंडिया में ये, इंडिया में ये अच्छा है, ये अच्छा है। बट द पीपल हु एक्चुअली स्टे विद इन द इंडिया, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इंडिया। दैट्स अ प्रॉब्लम एक्चुअली द पीपल, इंडियन पीपल हैव, राइट। बहुत बेस्ट जा रहा है, अपना बहुत अच्छा जा रहा है, पैसा भी बहुत बनने वाला है। बट फिर भी क्या है, हम लोग जब तक, ये हो सकता है कि 5 साल 10 साल चला जाएगा, और वो टाइम जाने वाला, वापिस आने वाला नहीं है। नॉमिनल जीडीपी देख लो या एवरेज मार्केट कैप देख लो, राइट। एवरेज मार्केट कैप लास्ट ईयर इट वाज इंडिया 257 लाख करोड़ था। नाउ एक्चुअली अभी इट इज एज ऑफ नाउ, एज ऑन मतलब यस्टरडेज क्लोजिंग, इट वाज 388 लाख करोड़। 388 लाख करोड़, ह्यूज वैल्यूएशन बढ़ा है। बट लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कम लोगों ने किया, राइट। क्योंकि उनको भरोसा नहीं है, राइट। मैं बोलता हूँ भरोसा करो, बराबर। आप जहां पे रहते हो उस पे भरोसा नहीं करोगे तो किस पे करोगे, राइट। दूसरा, क्यों बढ़ेगा? ये जो अपने इनकम का जो हाउस होल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज बिग टाइम्स। पहले अपने वहां पे पॉवर्टी ज्यादा थी, ये पॉवर्टी धीरे धीरे कम हो रही है। एंड देन लाइक ये जो है ना, ये सेकंड वाला जो है ना, 8 to 18 lakhs, 28 लाख रुपीज का बकेट जो है ना, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, इट्स गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 24% to 46%। एंड ये क्या है? इट्स नथिंग, इट्स स्पेंडिंग। खर्चा ही होना है, राइट। पैसा आया, खर्चा, पैसा आया, खर्चा। इट्स नॉट अबाउट ब्लैक और व्हाइट, इट्स ऑल अबाउट स्पेंडिंग, राइट। वेरी सिंपल। एंड जीएसटी आने के बाद तो किसी के पास ब्लैक हो या व्हाइट हो, व्हाट विल मेक एनी डिफरेंस एक्चुअली एनीवे। वो कार खरीदने जाने वाला व्हाइट से जाएगा, ब्लैक से जाएगा, दे आर गोइंग टू मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली थ्रू द जीएसटी, राइट। अगर मैं अच्छी होटल में खाना खाने जाऊंगा या नॉर्मल में जाऊंगा, अगर जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अच्छी होटल में जाएगा तो एक्स्ट्रा जीएसटी करने वाला है। वेरी सिंपल, राइट। सो व्हाट इज कॉल्ड, ये जो इनकम बढ़ती है ना, तो डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास बढ़ती है। एंड आई गोन थ्रू ऑल द कंट्रीज एक्चुअली जहां जहां में ये सब हुआ है, वेदर इट इज अमेरिका, वेदर इट इज यूएस, वेदर इट इज एक्चुअली कनाडा, वेदर इट इज चाइना, एनी ऑफ द कंट्रीज। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, इमीडिएटली आपकी जो खर्चा है ना वो भी बढ़ता है, ऑलवेज बढ़ता है। और उसका जीडीपी भी उसी हिसाब से बढ़ता है। और हमारा जो स्टाइल ऑफ लिविंग जो है ना, वो भी चेंज होता है, बिकॉज हम ना, भी एक्चुअली हमें बहुत कंफर्ट चाहिए होता है, राइट। वो पहले तो कुछ नहीं था, कहीं पे भी घूम जाते थे, बट ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ का। एवरी क्राइसिस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी। जैसे मैं मस्ती करता हूँ कि बिफोर एक्चुअली मैरिज, राइट, जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो पतंगी होता है, वो कहीं पे भी इधर उधर उधर घूमता रहता है। एज सुन एज ही और शी गेट्स मैरिड ना, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है। इसलिए मैं मैरिज को ह्यूमन लाइफ में क्राइसिस मानता हूँ। वेरी सिंपल, राइट। सो ये क्राइसिस देखो आप, ये एक क्राइसिस था बिफोर 1947, राइट। वर्ल्ड वॉर टू होने से पहले एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड में, यूके was actually raining everywhere. But 1945 के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू का जो क्राइसिस आया, उसके बाद जो है ना, पूरा यूके से यूएस शिफ्ट हुआ। उसका मतलब मेड इन यूएसए, मेड इन यूएसए, मेड इन यूएसए। नेक्स्ट, एक्चुअली व्हाट इज हैपन,
ऑलवेज कंट्री होता है, कुछ ना कुछ बीच में प्रॉब्लम आएगा, कहीं के पिक आउट होगा. इट इज एक्चुअली हैपन विथ यूएस ऑल्सो इन 1970, राइट. वहां पे स्टैगफ्लेशन हुआ एंड द इमरजेंस ऑफ जापान. जापान ने क्या किया, उसका जो येन है वो कहाँ था, एंड उतना एक्सपोर्ट ठोका पूरे वर्ल्ड में, राइट. मेड इन जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान कर करके इतना एक्सपोर्ट कर दिया, उसका करेंसी को अप्रिशिएट कर दिया, और उसका जो ग्रोथ है वो एक नेक्स्ट लेवल पे डाल दिया. सो मेड इन जापान हुआ, पहले मेड इन यूएसए हुआ, फिर बाद में मेड इन जापान हुआ, उसके बाद मेड इन चाइना. हर एक दो, हर टाइम पे दो दायका, दशक साथ में चले, राइट. मेड इन चाइना. तो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है, 1990 से मेड इन चाइना चल रहा था, अब तक चल रहा था. इट वॉज ऑलमोस्ट 30 years मेड इन चाइना. चाइना वॉज रेनिंग एवरीवेयर. अगर कोविड नहीं आया होता, अभी भी most of the people in the world used to talk about made in China. Now COVID is a blessing for India. So some crisis always blessing. हम लोग बोलते हैं यार नहीं क्राइसिस, अरे क्राइसिस ब्लेसिंग होता है. जैसे मैरिज इज अ ब्लेस, मैरिज इज अ क्राइसिस ब्लेसिंग इन, ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन बीइंग. तो फिर ये भी ब्लेसिंग है यार. क्यों? उसके बाद मेरा टाइम आ गया. इट इज इंडिया, इंडिया, इंडिया. अभी मेक इन इंडिया एवरीवेयर यू विल पीपल यूज टू हियर मेक इन इंडिया, बट दे डोंट अंडरस्टैंड. मैं उस पर भी आई हैव डेल लिटिल बिट मोर. पहले 10 साल कोई भी कंट्री का होता है ना, जब मेक इन नाम पड़ता है, मेड इन नाम पड़ता है ना, तो पहले 10 साल है ना, इकोनॉमी जो है ना स्पीड से चलती है. और नेक्स्ट 10 years जो डेटा होता है ना, डेटा ऐसा बताता है इकोनॉमी जो है ना वो मेंटेनेंस में चली जाती है. सो ये पीपल विल वेट फॉर द एवरीथिंग टू बी बिकम नॉर्मल, के नहीं बस सब सही हो जाए उसके बाद आई विल इन्वेस्ट. वो गया, हिल नेवर बी. वो भगवान के पास भी गया और वहां पे बोलेगा यार क्या कर दिया, बोले ये गलती हो गई. बोले ठीक है, अभी तू तेरे लिखा था तेरी गलती, तो तेरे को कुछ करना नहीं है, वो तेरे उसमें ही लिखा था. डाइवर्सिफिकेशन इज एन एसेंशियल. लाइक यहाँ पे लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, एंड आप वहां पे वो अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कौन से कलर में यू वुड लाइक टू रिमेन. आपको कौन से कलर में आपको रहना अच्छा लगेगा इसमें से, ये ऊपर का कलर्स, कौन से कलर में यू वुड लाइक टू रिमेन. ये कलर मैंने परफॉर्मेंस के हिसाब से है. जैसे ये वाला कलर है, रेड कलर है, ये ऑरेंज कलर है, लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू है. डिफरेंट कलर्स. विच कलर यू वुड लाइक टू बी स्टे देयर, कि मेरे को यही कलर में रहना बहुत अच्छा लगेगा. ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होता है पता है, जो मार्च 2005, 6, 7 जो है ना, स्काई ब्लू वाले कलर्स, बिकॉज इट हैज हायर नंबर ऑफ टॉप पे रहा है, higher number of Okay. times. And you're absolutely, my guess, your guess is absolutely right. That is actually equity. हमारी ख्वाहिश होती है वहां पे रहने की. This is what, this is every year if I see, as on 31st March, if I see the index level, look at this. 17%, 70%, 40%, 25%, and then 2009, 35 minus, then वापिस चक करके. Why? Because स्प्रिंग थी ना, गलत अगर दब गई थी, इसलिए चुम करके वापिस आ गए. आप रोज देखोगे प्रॉब्लम हो जाएगा, आप हर साल देखोगे यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम. हर साल बैंक में जाके कभी हमने पूछा है, अरे यार देखना मेरी एफडी का प्राइस क्या हुआ आज, वैल्यू क्या हुआ है. 4 दिन लगातार ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे तो ब्रांच मैनेजर जो है ना लात मार के भेज देता है, अरे भाग तेरी एफडी लेके चला जा वापस. राइट. क्यों रोज रोज आता है प्राइस पूछने के लिए, एफडी का दाम निकालने के लिए, राइट. बट हम यहाँ पे गलती करते हैं. एवरी डे वी यूज टू सी, एंड वी व्हेन यू सी एवरी डे, तो कुछ ना कुछ गलत होना चांसेस है, राइट. सो इट्स अ टाइम टू चेंज द वे वी इन्वेस्ट, राइट. हमको सोचना पड़ेगा क्या करना है. अदरवाइज इन्वेस्टमेंट जो भी एवेन्यूज होगा, इट इज ऑलरेडी डिलीवर बेटर रिटर्न्स फॉर द पीपल ऑफ नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब. But it is investor, their behavior actually, they hold them not to make money on a better way. तो उसके लिए discipline चाहिए, right. So there are number of people actually होते हैं बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं, हार्डवर्क समझते हैं, हैविंग गुड नॉलेज एक्चुअली, बट स्टिल दे डोंट सक्सेड. इट्स नॉट बिकॉज they don't know what they do actually, but it is because they don't do जिसका उसको पता है, which is called discipline, right. So which is very very simple my presentation. Now I let's go for a question and answer. Thank you so much. Thank you. Yeah.
I think it was such a wonderful session, and we really need more knowledge around it. I think when I was listening to you, I was thinking, okay, ठीक है, invest करना है, जाना है, but where to invest, what to do, how to go about it. I'm sure people would be having questions, so I guess we Correct. can get some clarifications from Praveen sir. Yeah. Any questions? सर आई Praveen, थिंक ये सेशन क्या थोड़ा सा और चलता, आप अगर और बोलते तो वी वर एंजॉयिंग दिस थिंग। okay, okay. Thank you, thank you, thank you, thank you. So before anybody asks the question, maybe I have a very quick question. So if let's say I have money, I want to invest, and as you said, the traditional way of investing, I've been investing in FDs, gold, and all those, property. So if you have to suggest something for a person like me who is just starting out, what would be the suggestion? Hmm. Or Absolutely you don't wonderful want to? question. Actually, सबके दिल में होता है ये क्वेश्चन. कुछ लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं. So it was very nice actually. So let me just start with the gold actually. So आपने, I don't know whether you have seen your कुंडली or not. Have you seen your कुंडली? नहीं ना, सुमिता जी नहीं देखी होगी. सो कहीं पे, हैव यू एवर सीन, वहां पे कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको गोल्ड लॉकर में रखना है, ऐसा नहीं रखा है ना. नहीं है, आप देखो. एंड डिस्पाइट दिस एक्चुअली वी कीप all the gold in lockers. Actually gold is all about the enjoy, right? जो देखो Not मैं even देखो, enjoyment, not even enjoyment, because you can't wear all your gold. It's Yeah, always in the locker. नहीं बट it's in आई, the locker. इट्स नॉट, देख दिखाना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं कफलिंग के साथ में पहनता हूँ. ये देखो अंकित जी. राइट, पहनना है ना. राइट, अदरवाइज क्या होगा, आप ये क्या होगा, जब भी मेरा नाम आएगा ऊपर भगवान के पास, नाम तो आना ही है, ऐसा तो नहीं है नहीं आएगा. एंड देन वो टिक मार्क होते हैं वहां पे, और बोलते हैं अच्छा प्रवीण जी, ओके आपने गोल्ड एंजॉय किया था कि आपके लॉकर ने एंजॉय किया था. खत्म, स्टोरी खत्म. एंजॉय. एंड गोल्ड पे भी प्रॉब्लम क्या है इन इंडिया स्पेशली, आई डोंट नो द पीपल हु आर एक्चुअली पेइंग अ 33% टैक्स एंड स्टिल दे बाय अ गोल्ड इन कैश. सो इट इज नॉट अ 60, इट इज 80,000 का उनको पड़ता है एक्चुअली. राइट, विच इज रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टिंग एक्चुअली. गोल्ड एंजॉय करना है. एफडी कितना, जितनी जरूर हो उतना, कि मेरे को पता है नेक्स्ट 2 साल 3 साल में है, जब चाहिए पैसा, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे आ गए हैं यहाँ पे. यू कैन पार्क द मनी. राइट, आई हैव ए वेरी गुड अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट विद वन ऑफ द प्राइवेट बैंक इन इंडिया. राइट, और वहां पे मेरे को बोल, वो आई यूज टू गेट अ कॉल फ्रॉम द लेडी, वहां पे है मेरी आरएम. अरे प्रवीण जी, मैंने कहा हाँ. बोले आप अकाउंट में बैलेंस रखो ना. मैंने कहा व्हाई शुड आई कीप बैलेंस, you have given me a facility of zero balance account, let me keep as it is. But everybody doesn't think about like this, and that is why in India, as per RBI report, 22 lakh crore money lying in savings bank account which is earning 2.7%. So uska ek rule hai, if you value the money, money will value you. Very simple. So kya next, what next, आपको वो हमको तय कर रहा है कि कहाँ जाना है. डू आई नीड टू ट्रैवल टू दिल्ली, या डू आई नीड टू ट्रैवल फ्रॉम इन अहमदाबाद फ्रॉम your place to Manek Chowk? If you need to travel from one place, प्रहलाद नगर to Manek Chowk, प्लेन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो भी चलेगा. सो देर आर वेरियस एक्चुअली, ये साधन है, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड फंड्स, वो फंड्स, ये सब इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज है. फ्रॉम वेयर यू नीड टू ट्रैवल, कितना दूर जाना है, अकॉर्डिंगली आप लो. नहीं तो क्या होगा, पीपल यूज टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टिंग इन एफडी एंड दे कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन एफडी फॉर ए पीरियड ऑफ 20-30 years, विच इज अ रॉन्ग वे. क्योंकि उसको दैट मीन्स के पहले दिन में ऑटो में बैठा और पूरी जिंदगी ऑटो में निकाल दी उसने. उसके एक्चुअली उस टाइम पे वॉल्वो लेनी चाहिए थी, ताकि वोल्वो पहले शुरू में हो सकता है बिकॉज द ट्रैफिक जैम एंड न्यूसेंस, ट्रैफिक न्यूसेंस के कारण पीछे रह सकता है. राइट, बाद में जाके वंस द हाईवे विल कम, मतलब इक्विटी का टर्न आता है, वो कभी पीछे नहीं रहता है, तो बाद में जाके आगे निकल सकता है. बट वो सोचता है कि नहीं नहीं मैं पीछे नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए तो वो प्रॉब्लम है यहाँ पे. एंड द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज डिसिप्लिन.
a discipline. Like I invest every month, I invest on a quarterly basis. मैं कभी मार्केट नहीं देखता हूँ, राइट. मैं रात को 10 बजे इन्वेस्ट कर लेता हूँ. जनरली लोग क्या करते हैं, 9 बजे मार्केट खुलने के बाद इन्वेस्ट करते हैं. मैं बोलता हूँ यार आई डोंट हैव ए टाइम टू यार इन्वेस्ट, बिकॉज उस टाइम पे मैं राहुल को मिलता हूँ, मेरे दोस्त लोगों को मिलता हूँ, तो मैं वहां पे वो ट्रांजेक्शन नहीं करता, बिकॉज मेरा काम है मिलना, मेरा काम है बात करना. उस टाइम में व्हाई शुड आई वेट, कोई मार्केट सही है गलत है ये क्या है. यू विल बी एबल टू टाइम द मार्केट ओनली डे, राइट, नॉट फॉर द लाइफ, राइट. आप पैसा डालो और फिर काम करते हो. मैं कभी कभी रात को 10 बजे भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सैलरी अगर वो लेट जमा हुई है तो मैं रात को ही डाल दो सीधा, राइट, विच इज इम्पोर्टेंट यहाँ पे. सो एक, सो ये वाला है. आप अकॉर्डिंगली आप, आई थिंक द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट फॉर एनी वन एक्चुअली, वो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने बोला है, इंक्लूडिंग राइट राकेश झुनझुनवाला, कि जिसके पास वो सोच नहीं होती है कि मैं बहुत टाइम दे पाऊँ, कौन सा इक्विटी डायरेक्ट अच्छा है, कौन सा स्टॉक सही है गलत है, राइट. तो फिर म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट एक्चुअली, बिकॉज वो वहां पे आपके लिए कोई और काम कर रहे हैं. जैसे बहुत सारे मेरे फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर है, they are from all, most of the portfolio manager are from IIM Ahmedabad actually. My Anand Radhakishan was there, son, मेरे वेंकटेश संजीवी from IIM Ahmedabad. फिर मेरे अभी राजसा करके मैडम है मेरी, सी इज फ्रॉम IIM Ahmedabad, राइट. बहुत सारे मेरे IIM Ahmedabad से यहाँ से. तो मेरे को उन्होंने पढ़ के इतना काम किया हुआ है, तो वो उनको टेंशन लेने दो ना. व्हाई शुड आई टेक टेंशन एक्चुअली, राइट. और मेरे को उसका एक्स्ट्रा चार्ज क्या देना है, इट्स जस्ट अ 1%. इन 1% में आई विल बी एबल टू सीट बिहाइंड द ओला एक्चुअली. ओला में पीछे की सीट में बैठूंगा, लेट माई ड्राइवर टेक अ टेंशन. मैं एवरी टाइम आई डोंट नीड टू से अरे ब्रेक लगा ये कर, वो करने की जरूरत नहीं है. तो मैं पीछे बैठ के पैसा बना रहा हूँ, उन लोगों को हेल्प कर रहा हूँ. सो म्यूचुअल फंड इज ए बहुत सही जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्पेशली इन इंडिया फॉर द रिटेल. प्रवीण, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. या मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड और एनीवेयर एल्स. So must priority is to be part into equity. You know, to whom I met in Ahmedabad over a period of that January duration, I thought that maximum investment is lies into a fixed deposits or gold. So as he mentioned in the graph, that gold average return for, if we evaluate 25 years chart, then historically gold return would be nearly 10%. Whereas other than in equity, it should be a 14, 15, 16%. If you talk about any equity plan, then it should be more than that also. So most important is most important is you need to drive. Now, when I met Preeti in Mumbai last week, immediately the one small story or illustration which I think to, that imagine that you are in Mumbai and Mumbai traffic. So to cross the traffic, you need to travel anyhow. So first, you need to drive by yourself. You have to drive your own car. Like that, you need to identify equities by your own way out of your busy schedule. If you are working for someone else, you have to take some more time for you to identify equities where you can park for over a period of 10 years. Because we feel that equity is good investment as of now. Secondly, if you have other liabilities, means that if you want to study something, if you want to talk with someone, then it's been very difficult to drive in Mumbai with lots of traffic. So you have an option to hire Ola or Uber. This is exactly like a mutual fund. So आपने registered mutual fund से उसको पैसा दे दिया है. They will taken care of your fund on behalf of you. The NAVs, the prices are daily declared. You will able to see your portfolio on daily basis also. So that is equally like Ola and Uber. Secondly, if you are some big shots, then you can hire a driver for you also who can drive it. So there may be a different broking houses where there are PMS, there are AIF, means there are something and someone who are especially qualified on a financial who will take on your fund. So today's session is important is that we feel that India is in a different stage. So where US, Japan, China were there, we are about to entering into this stage. As he said that this is a 10, 15, 20 year story. The moment you are entered right now, the base, you know, हमने एक story सुना था IIM में. I think this is also correlated with this. First session में जब राहुल ने
कृतिका को प्रपोज किया था, उस दिन एक स्टोरी था नोएडा के ट्विन टावर पे, एंड व्हाट आई केम टू नो इज 7 माले का परमिशन था, 22 माले बने, और उसमें सर ने एक बढ़िया चीज बोली थी अग्रवाल जी ने, कि बिल्डर ने बेस 25 माले का बनाया था. नो बडी इज इन्वेस्टिंग इन बेस. इफ यू आर अ कंपनी, प्रॉफिट इज अ फर्स्ट, कैश इज अ फर्स्ट प्राइस, देन हाउ ही नो कि ये 25 माले का बिल्डिंग कल बनेगा. सो मैं वो बिल्डर बनाना चाहता हूं आपको कि कल इंडिया 25 माले का बनने वाला है. डोंट थिंक दैट इंडिया विल ग्रो बाय 5 times. इंडिया विल बिकम 25 times इन 25 years और 15 years. तो आज आप जितना बेस बड़ा रखोगे उतना कंपाउंडिंग आपको ज्यादा मिलेगा. सो आज आपको बैठना कहाँ है? Correct. There are number of asset class. Equity has in own value. Real estate also have in own value. इक्विटी में आप 5,000 डाल सकते हो, वहां आप छोटे अमाउंट से शुरू नहीं कर सकते. इक्विटी में आप रिडेम्पशन पूरा या आधा या पार्शियल कर सकते हो, 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा. वो रियल एस्टेट में ये नहीं होता, वो डिमांड सप्लाई पे काम करता है. रियल एस्टेट लंबे टाइम पे अच्छा रिटर्न देता है, ये लंबे और छोटे मीडियम टाइम पे भी अच्छा रिटर्न देता है. देयर वर वेराइटीज ऑफ प्लानिंग, जैसे लिक्विड फंड से शुरू होते हुए सेक्टरल इक्विटी तक जाते हैं. सो मेन इंपॉर्टेंट चीज बीइंग एन इंडिया एंड इंडियन, व्हेन एवरीबडी इज वाचिंग ऑन यू, you should be part of Indian equity. You have to believe that Indian equity will give a good return. If you think that equity 10 साल में पैसा आपका 10 गुना बनेगा, इसका मतलब ये है कि पहले 5 साल में वो 3 गुना बनेगा, और 3 गुने का 3 गुना 9 गुना बनेगा. So if you invested in base on very well and on a diversified way, then it will grow your fund on a very good time. इक्विटी में पैसा डालना है, आप 5-7 साल सोच के चलना शुरू करो. आप SIP से पैसा डाल सकते हो. आप अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ म्यूचुअल फंड पर से ओनली. इक्विटी में डायरेक्ट इक्विटी कर सकते हो, आप खुद के हिसाब से भी कर सकते हो. हियर वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग आर प्रोडक्ट्स. वी जस्ट से दैट इफ यू नो एनीवन टू whom you trust, whom you know that he is a better than you as an part of equity analysis or equity generation for a good period of time, you can give money to those people. वो आपका पैसा डबल करने में शुरू करेंगे. 2-3 और चीज मुझे लग रहा है कि विच आई कनेक्ट विद दिस. प्रवीण ने बोला था, एक स्लाइड दिखाई थी जहां पर दिख रहा था कि 1995 में 18% FD का रेट था, फिर कुछ 15% हुआ, 13% हुआ, 12% हुआ. सो डू आर पेरेंट्स आर नॉट गुड इन इन्वेस्टमेंट? नहीं, वो लोग अच्छे थे. दे पुट इट मनी इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट because the rate of interest is much higher than inflation. If we evaluated inflation over a period of a good time, then it should be a 7%. So जब आपको 18% मिल रहा था तो इवेंचुअली आप 11% ज्यादा बना रहे थे, तो they were right. जब 12% इंटरेस्ट था, स्टिल आप 4% ज्यादा बना रहे थे. सो those are also right. बट जब आज के दिन में इन्फ्लेशन 7% का 7% ही है, एंड आपका रिटर्न भी 7% है, उस पर आपको टैक्स भी देना है, सो इवेंचुअली यू आर नॉट मेकिंग अ गुड मनी. सो 100 रुपीज कॉस्ट, आज आप दूध की थैली 32 रुपीज की, मिल्क का जो पाउच है वो आज आपको मिल रहा है, विच इज बीन कंपाउंडिंग 7% expensive and expensive over a period of good time. So if you are putting your money in FD, one day a day come जब आपको एक थैली की जगह, एक पाउच की जगह आधे पाउच से काम करना पड़ेगा, because your money power is eventually decreasing. So what we need to do is to modify and to overcome of our inflation, we need to invest in such a security or such a place where आपका रिटर्न मल्टीफोल्ड हो, कंपाउंडिंग हो. एंड कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला है इक्विटी. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी. सो एक, as I'm saying that you are all are beginner, so I said that why equity will give you a good return. Yeah. So what I'm telling is why equity is giving a good return over a period of a good time. बीजेपी बोलता है कि इंडिया का ग्रोथ रेट 60% होगा, कांग्रेस बोला झूठ बोल रहा है, साले 6% का होगा. So it means that India's growth is been there 6 to 7% for a nearer period of time or a good period of time from now onwards. We have inflation at 6 and 7%, which comes to 7% of real growth plus 7% of inflation tentative, which comes to 14% nominal growth. मैं डिस्काउंट कर लेता हूं, 11-12% से इंडिया ग्रो करने वाली है. ये 11-12% कहां से आता है? It will come from 3 sectors. 1, agriculture, 2nd, industries, and 3rd, services. You have agriculture, you have industry, you have services. This 3 part makes India's growth overall at 11%. Now, agri being a part of 40%, जो 4-5% से ग्रो होता है जनरली.
So remaining two sector has to be performed 15, 16, 17 times, 17% to get an average of 11 to 12%. And ये तीनों चीज listed है. You have agri stocks, you have service stocks, you have industry stocks. So your equity is a backbone of your country. It will reflect on a global indices. So आज when I meet to number of people, I think that there are number of good people. आज मुझे अहमदाबाद में one of my US client give me in crores rupees. आज मैं चेक लेके आया हूँ. So he's sitting in US. इंडिया में भी नहीं है आज वो. आज की बात कर रहा हूँ. शाम को 5 बजे मैं करोड़ों का चेक लेके आया हूँ. ठीक है. So sitting in US, he thinks that India is growing. And we Indians are still not believe that India is growing. मेरा 2009 से SIPs है. My average return is 21%. I can share my screenshot. मेरा एवरेज रिटर्न 21% का है लास्ट 15 सालों का. So what my question is, an entire my portfolio is liquidated in a single day. So ऐसा भी नहीं मैंने कोई जगह ली है, उसने 20% रिटर्न दिया है, अभी मुझे बेचना है तो न्यूज़पेपर में ऐड देनी है कि भाई कौन बाय करेगा, मैं 5% सस्ते में बेच रहा हूँ. नो, I can sell my entire portfolio right away. So what my telling to you all is, be wise. ऐसा नहीं है कि सब गंगो करना है, नहीं करना है. Everybody has a different thought process. Everybody has a different risk appetite, different return expectation, different liquidity aspects, different profit, different income, everything different. There can be a change from X and Y. Paracetamol सबके लिए ठीक होती है, तो सबको मेटासी नहीं मिलती, डोलो का मार्केट ही नहीं होता. So there are different paracetamols. ठीक है, किसको क्या सूट करेगा. So to whom you know more, आपको जहां अच्छा लगता है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, you start to invest in equities. Because आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी सर आएंगे नहीं आएंगे सेकेंडरी बात है. दिस अगेन लाइक अपना ट्विन टावर. 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5 साल के दूसरे बात, छोटू की बात कर रहा हूं. Again, I reconnected. I am talking about Chotu. So this 5 years is Modi is there. If we think and trust on him, this 15 years, they made a number of good changes. There is a movement from X made in China to made in India. There are a number of good global companies who've been invested in India, who've been participating in India, who would like to manufacture also in India, because we have everything right now. A stable government is there. Manufacturer owners are there. Business families are there. And we have a large scale of investors are there. If we think that the journey from 0 to 60,000, we are predominantly depend on a FII only. But if we compare the data from 60,000 to 70,000, in this time, there is a net FII sale. There are 70,000 sale from FII and 6 lakh crore net inflow from DI. This is the power of our side. We in-depth only. Let's say one more data from SIP book is 17,000 at the end of December 31st, 2033. 17,000 crore की SIP input value थी, which increased to 18,800 in January end. आप सुनो 10% SIP input value एक महीने में बढ़ी है. So it means what? A small people, my ये क्या बोलते हैं, हजाम होता है या कारपेंटर होता है या इलेक्ट्रिशियन होता है. These all people know the power of compounding. These all people started to invest $500 from their salary, savings, everything to be part of equity and growth story. So what my urge is to meet the people to whom you know more and more, know about investment aspects, investment options. Just invest, think for 3 to 5 year perspective. It is your fund. You can withdraw any point of time, but give some portion of investment to an equity. Be part of the story of India. I think 15 years, प्रवीण की एक साइड का एक लास्ट सेंटेंस बहुत अच्छा लगा था मुझे. See, don't be a rich, be wealthy. The difference between two is what? Rich has money, lots of money, but rich has to be work on an entire day. But wealthy has money plus time. He do whatever he would like to do. When he read a book, money will come in his bank account. When he is a travel to outside India, the money will be back in this account. When he's not going on a job or business, money is still getting inside in his account. So, अगर आपको wealthy होना है, then 15% for 15 years will amaze. Think about this. और कोई question हो, you can ask. This is just a summary of this all investment. ये प्रवीण ने फटाफट बोल दिया 1 घंटे में. तो और भी कुछ क्वेश्चन, आई एम हैप्पी टू आंसर. Thank you, One Rahul. I thing, think Rahul and Praveen, Yeah. I want to ask.
Like Yeah, I invested, personally saying, I invested in 3, 4 NFOs. So right. out of those 3, 4 NFOs, I was expecting that as per the growth of the country and as per the growth of the market, NFO will give good returns to me. But what happened among that? That out of 4 NFOs, 2 NFOs still have not attained the same momentum, which momentum was there required to be attained. What I expected out of those NFOs. So, how to identify good, like you said, SIPs or portfolios? So, how to identify those good portfolios? What are the basis of identifying these things? प्रवीण मैं ही आंसर Right. देता हूँ। प्रवीण मैं देता हूँ मेरे हिसाब से। Hmm. Hmm. अच्छा, सचिन सचिन जब बैटिंग करने जाता था तो उसके सामने Hmm. 4 बैट रहते थे, 3 यूज बैट जहां एक में उसने फर्स्ट 200 मारा था, एक वो बैट जिसमें उसने 30 सेंचुरी मारी थी, और एक नया बैट था कल ही आया हुआ। सो नया बैट था वो एनएफओ है। आपको ऐसा लगता है वो एनएफओ वाला बैट से ज्यादा स्कोर करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो एनएफओ इज जस्ट अ न्यू फंड विद दैट एएमसी डजंट हैव। इफ सेबी इज गिवन अ गाइडेंस टू एवरी एएमसी दैट आप ये फंड में ये जगह पे पैसा लोगों का ले सकते हो, तो अगर आज मेरी वो जगह वैकेंट है तो मैं क्या करूंगा, मेरा एक नया एनएफओ लेके आऊंगा। बट वी नीड टू नो दैट दिस सर्विस और दिस स्कीम जो जो सेक्टर डाल रहे हैं या जो थीम पे जो इन्वेस्टमेंट है, इजंट इट लुक्रेटिव इनफ फॉर राइट नाउ और नॉट। हमें ये देखना है कि आज अगर मुझे आज लगता है टेक्नोलॉजी इज अ गुड सेक्टर एंड मिड कैप इज ओवर वैल्यूड। सो अगर आज कोई मिड कैप का एनएफओ लेके आ रहा है, दिस जस्ट नॉट कि ये आज मिड कैप अच्छा है इसलिए एनएफओ लेके आ रहा है, दिस जस्ट टू फिल द ब्लैंक्स व्हाट दिस एएमसी वांट। उसके पास मिड कैप नहीं है तो वो मिड कैप लेके आ रहा है कि कल जाके जब मिड कैप की जगह बनेगी तो उसके पास एक 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होगा। So before investing into any fund, so NFO है या equity है या ongoing scheme है, you have been thinking that isn't this a relevant time to invest in this scheme or not? It is not about that NFO आया तो अच्छा ही है और डाल दिया आपने। So it's just a matter that आपका diversification है, आपने 3 जगह पे 4 जगह पे पैसा डाला हुआ है। Isn't I am investing right now is the right thing to invest or a part of the equity? अगर आपने सिर्फ एनएफओ देख के डाला हुआ है तो इट डजंट, कहीं लिख के नहीं आता है कि एनएफओ है तो रिटर्न देगा ही देगा। और नहीं दूसरी बात, राहुल भाई it's like कि जो NFO which I chose, that was mid cap NFO, and it was selected at least 4 years back. But let me connect to my question back. Like if I want to search for a good investor who can suggest me that I should go, my portfolio is hybrid, I should look for such an way of investment. These are the areas where I should invest. So how to find those good investment areas and how to find those good investment consultants? so there were 3 lakh consultants in India who are registered under SEBI. 3 lakh. Hmm. HDFC Bank is one customer. In HDFC Bank, there are 3 lakh RMs who are working on it. Now, it's been very difficult to identify a right person, but I'm saying that we are also one of it for a lighter mode. So, but you need to regularly interact with the advisor that these are my plans, these are my investments, these are my role projects, और these are my projection over a period of good time. मेरा ये गोल है कि मुझे 4 साल में ये चाहिए, मेरा ये गोल है कि मुझे 4 साल में ये गाड़ी लेनी है, मेरा ये गोल है कि मेरे बेटे का एजुकेशन मुझे यूएस करना है। So there were some investment which should be aligned for that, and you have to regularly, intervally check that aren't your investment is made aligned with your goal or not. Example, you invest in ABC mid-cap funds. So there are 45 AMCs. So maximum there are 45 mid-cap funds. Now all mid-cap funds are performing well or not, I don't know. But there are something volatility in mid-cap funds. So example, कोई एएमसी है जहां मिड कैप में अच्छा नहीं करती है, तो आपका एडवाइजर आपके पास आके बताएगा बिकॉज ऑफ एबीसी रीजन द फंड मैनेजर चेंजिंग। जैसे आज एक्स फंड मैनेजर है, कल उसने छोड़ के वाई कंपनी में ज्वाइन कर लिया, सो द न्यू गाय विल टेकन केयर ऑफ द पोर्टफोलियो, दैट इज वन रीजन। कोई साइफनिंग हो रहा है, सेकंड रीजन। समहाउ हिज कैपेसिटी ऑफ चॉइसिंग द स्क्रिप्ट इज नॉट वेल, इज अ थर्ड पोर्शन ऑफ। सो आपका एडवाइजर है, उसका रोल है कि वो आपके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करे, चेक करे और सही समय पे बताए कि दिस इज हमारा इन्वेस्टमेंट अलाइन नहीं हो रहा है, somewhat time, somewhat reason, so let it we exit out of this fund and invest in some other scripts. See why advisor or why you need a driver.
आप कहीं जा रहे हो, आगे रास्ता बंद है, तो आपका ड्राइवर बताएगा ना, सर ये रास्ता बंद है, हम यहाँ से चले जाते हैं। आप समझ रहे हो? सो दिस इज अ रोल ऑफ योर एडवाइजर who will guide you that because of ABC reason this is not performing, and because of this ABC reason you need to invest in this fund. For you it has been very difficult to study each and every segments, because एक फंड को सिलेक्ट करने में सिर्फ नाम नहीं देखना होता है, उसके अंदर की बहुत सारी चीजें देखनी होती है। जैसे उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, शार्प क्या है, फंड मैनेजर कितने टाइम से वो फंड मैनेज कर रहा है, फंड की स्ट्रेटेजी क्या है, ग्रोथ है, वैल्यू है, ब्लेंड है। मैं सिर्फ मिड कैप फंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। उसका चर्निंग रेशियो क्या है, स्क्रिप्ट का चर्निंग रेशियो क्या है, आर दे लार्जली मिड और स्मॉलली मिड, उसका साइज क्या है, फंड का साइज क्या है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू एक्सेस ऑन अ रेगुलर इंटरवल। आज आपने डालते टाइम पे देख लिया, ऐसा नहीं है। दिस लाइक अ ट्रेन, आप बैठे हो, वहां से आपको उतरना है, हर टाइम के आपको देखना पड़ेगा कि मेरी बैग को उठा तो नहीं ले जा रहा ना। आपने डाला, बैग ने बैग को नीचे छोड़ दिया आपके सीट के नीचे, फिर आप सो जाओगे, ऐसा नहीं है। If it is a full of cash, then you need to take care through the entire journey. The investment is as like as you hired a person, वो चौकीदार है, सामने खड़ा है, उसका काम है आपकी बैग को रेगुलर इंटरवल पे देखते रहना। Your bag is still parked under, still parked under, still कुछ भी छेड़खानी, वो आपको बताएगा सर योर बैग इज आउट, नाउ दिस अ टाइम टू एग्जिट आउट ऑफ दिस फंड, बिकॉज ये भी इसका टाइम खत्म हो गया, मिड कैप ओवर वैल्यूड हो गया है, बाकी सब मिड कैप से ये कंपेयर नहीं कर पा रहा है, ये Q4 में रिजल्ट दे रहा है, सो बेटर टू एग्जिट आउट ऑफ दिस फंड. So there are some rules. Secondly, as you invest in 4 scripts, the advisor will give you an taste of everything. Like example in Ahmedabad, ऑनेस्ट का भाजी पाव अच्छा है, हैमोर का चना पूरी अच्छा है, संकल्प का डोसा अच्छा है। सो मेरा काम ये मैं आपको संकल्प का डोसा खिलाऊं। जैसे मैं खिचड़ी खिलाने राजपथ ले गया, फ्रिस्बी में कुछ, मैं सब एक जगह पे खिलाता ना, तो शायद आपको 2 अच्छा लगता, 2 अच्छा नहीं लगता। So in the same era, when you're investing in different 4 schemes, you have to identify that in small cap, example, Nippon is number 1, so you park in Nippon. In balance advantage, ICICI is good. So there is a taste of ICICI which is come under balance advantage, and taste of small cap is good under Nippon. So your diversification also make a key role of that. So somewhat time, you see, our role is always an advisor, that we always feel that our client is always learn client. क्लाइंट को सिखाते सिखाते धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। दिस इज व्हाट आवर रोल इज ऑल अबाउट। सो आपको ये देखना है कि आपका पैसा आपके लिए सही तरह से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको कब पैसा डालना है, कब पैसा निकालना है। बेटर कोई हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एडवाइजर ही हो, कोई हो, इट कैन बी योर फैमिली हु कैन मच इंटरेस्टेड इन इक्विटीज और मच इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट्स, योर फ्रेंड, योर वेल विशर, कोई भी, मैं हूं, कोई भी हो जो आपके लिए काम करे, जिसका सुबह से शाम ये काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम वो आईटी का जॉब कर रहा है, शाम को यहाँ से भी 2 पैसे मिल जाते हैं तो मैं बना बनाया लोगों का लिया हुआ ज्ञान आपको चेप दूं। सो दिस इज व्हाट वी थिंक। One thing, that as you mentioned that there are many investment advisors in the country, and there are many firms actually which are working into this area. So, do you advisors have a ranking system where any person who has to invest, he can analyze the performance of the advisor or sort of thing? Because as I also have many of the RMs from the banking sectors, many of the RMs from the various other investment sectors, but I तो always best I understand question. Now how to choose an advisor, this is basically your question is, am I right? तो पहला चीज ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट आज से 10-15 साल के लिए है, तो पहले ऐसे आदमी को चुनो कि जो आपके साथ ये 15 साल खड़ा है, क्योंकि वो 15 साल का जर्नी आपको, उसको और वो जो कंपनी बिलोंग करता है उससे कंप्लीट होगा। ये 3 पैरों वाला चेयर है। You are constant because this is your investment. Now remaining 2 pillar is, one the company जहां से वो आरएम या बंदा आ रहा है, एंड वन जो आरएम जो आपका पैसा हैंडल कर रहा है। सो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज विद ICICI, so I have X number of selected plans which I shared to my clients. Now because of we all are aspiration growth, आप सबने भी 2-3 जॉब चेंज किया होगा, शायद मैंने भी जॉब चेंज किया। ना शिफ्ट टू HDFC ना, HDFC का सोचने का तरीका पूरा अलग ही था ना। जो क्लाइंट को मैंने ICICI की तरह से इन्वेस्ट करवाया था, HDFC वाला बोला ये तो गलत चीज है।
और एचडीएफसी मुझे पगार दे रही है, पैसा दे रही है, सो आई हैव टू गिव देम 5 टाइम्स 10 टाइम्स, मुझे भी उसको कमा के देना पड़ेगा। सो इवेंचुअली हो क्या रहा था, द इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस फ्रॉम आईसीआईसीआई एंड डिप्सी चेन एंड विच इज इम्पैक्टेड ऑन माई क्लाइंट्स पोर्टफोलियो। सो माई क्लाइंट हैज टू चॉइस, क्लाइंट एंड मैं कांस्टेंट रहूंगा तो कंपनी चेंज होगी, और क्लाइंट एंड बराबर। कंपनी आईसीआईसीआई कांस्टेंट होगा तो आरएम चेंज होगा। सो पहला चीज आप समझ लो कि 90% ऑफ एनी सैलरीड आरएम वो आपको जेन्युइन दे ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका सबसे पहला एस्पेक्ट है उसकी सैलरी जस्टिफाई करना। Correct. दूसरा, वो आपके साथ 15 साल रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, पर वो कंपनी के साथ तो 3 साल से ज्यादा रहने वाला है नहीं है। तो थॉट प्रोसेस ऑफ देयर माइंड इज रेगुलरली चेंजिंग। Now again, your question is, is there any criteria where you can identify this advisory good or bad? जनरली ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपके वहां पर मेडिकल स्टोर्स होता है, वहां बोलते हैं कि ये मेडिकल स्टोर अच्छा है, मेडिकल स्टोर गलत है, ऐसे नहीं होता। होता क्या We है, have या तो rating system, we have नहीं, मैं आता हूँ, certifications. मैं वो पॉइंट पे भी आता हूँ। ये मेडिकल स्टोर अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप कंदोई की दुकान है तो कैसे एवेल्यूएट करते हो कि ये 1000 रुपए में माल बेच रहा है, ये 1500 रुपए किलो बेच रहा है, यहाँ 2 लोग खाने आते हैं, यहाँ 15 लोग खाने आते हैं। मीन्स यू ट्रस्ट दैट व्हाट यू सी। सो एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, उसकी साइड पे दे इश्यू टॉप 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया। So example, we are in top 100 distributors of India. So Alps Wealth India Private Limited has been part of this top 100 distributors of India. Now you have to identify that एक चाय की दुकान पे 2 लोग चाय पी रहे हैं और एक चाय की दुकान पे 25 लोग चाय पी रहे हैं। Where you want to go it? This one thing you can trust on a first chance कि लोग ज्यादा जा रहे हैं तो शायद ये अच्छी चाय बना रहा होगा। यहाँ लोग जाते हैं, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी एंड लेट्स टेस्ट इट। हमने टेस्ट किया, तो जो आपके पास एडवाइजर है, आपको जो 1 या 2 या 3 अच्छे लग रहे हैं, मेरे हिसाब से 3 से ज्यादा एडवाइजर भी नहीं होते, 2 भी बहुत हो गए। सो 1 या 2 एडवाइजर है, उनके साथ आप काम करना शुरू करो। जस्ट चेक दैट you get a proper service, you get a proper answer of your question, you get a proper results of your or what, and eventually your pie is shifted to X or Y. यहाँ कोई गणित नहीं है कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है। A person is good for number of people, but bad for one person. And a person for bad for number of people, but is good for you. So you need to check, this is your investment. You can split your investment between 1 or 2. It can be a range of 50-50 or it can be a range of 90-10. आपको जहां पर ट्रस्ट है वहां पैसा दो। मैथमेटिक्स में और इक्विटी में सबसे बड़ी बात है, पैसे पे परसेंटेज लगता है। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में 10% होता है तो 10 लाख क्रिएट होता है, और 1 लाख में वही 10% 10,000 होता है। सो दोनों का रिटर्न सेम ही है, आप 1000 डालते हो या 100 करोड़ डालते हो। सो वी हैव टू वर्क इन परसेंटेज टर्म्स। सो आप देखो कहां पर आपको परसेंटेज ज्यादा मिल रहा है, आप देखो कहां पर आपको सर्विस ज्यादा मिल रही है, उससे ऊपर देखो कहां पर आपका असेट एलोकेशन हो रहा है और आपको आपको वहां रिजल्ट मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट माय सजेशन कि आप ऐसे कुछ कर सकते हो। प्रवीण, यू वांट टू से एनीथिंग? Yeah, yeah, I think Praveen. या राहुल, सो जस्ट एक जैसे अच्छा सलाहकार कौन होता है कंट्री का, जो कंट्री में वॉर न कराए, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, राइट? सो तेनाली रामा सबने नाम सुना होगा, राइट? Yeah. 1520 एसी में वहां पे वो तेनाली रामा जो विजयनगर का जो किंग था, कृष्णा देव आर्य, राइट? तो उसका काम था सलाह देना। उसने कभी भी वॉर नहीं कराई, राइट? अगर वॉर नहीं कराई उसका मतलब वो पूरे कंट्री जो है, जो भी है विजयनगर, उसका खुशहाली बढ़ा। सिमिलर, अगर आपका पोर्टफोलियो में वॉर नहीं होगा तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा, राइट? जैसे अभी राहुल ने पहले इधर में था, उसका कुछ और सोचना था, दूसरे में ये जगह पे था, कुछ और सोचना था, तीसरी जगह एक और था तो और सोचना था। तो एज ए रिजल्ट एक्चुअली आपका पोर्टफोलियो में वॉर हुआ। अगर वॉर हुआ तो ग्रोथ नहीं मिलेगा, वहां पे खुशहाली नहीं आएगी। सो Correct. बहुत सही बोला राहुल ने कि जो बंदा है उसका जो लाइन है, लाइन ऑफ थॉट प्रोसेस जो है, वो आपके साथ में मैच होता है कि नहीं, एंड ही और शी विल बी कंटिन्यू इन योर जर्नी और नॉट, राइट? अपना जैसे मैरिज सक्सेस कब होता है, वो जर्नी कंटिन्यू रहती है,
राइट? द मोमेंट, जैसे मैं मस्ती करता हूँ जस्ट ऑन अ लाइटर मोड एक्चुअली, लाइक अगर मेरे को, मैं इन्वेस्टमेंट में सफल बनना चाहता हूँ ना, आई हैव टू मेक इट बोरिंग, बोरिंग लाइक मैरिज, बोरिंग करना पड़ेगा. इफ आई try to get some excitement out of my marriage, I tend to do a mistake. I don't want to name of the mistake, but I tend to do a mistake and which can cost me a big time. राइट? एक्साइटमेंट नहीं लेने का. इन्वेस्टमेंट में द मोमेंट एक्साइटमेंट आना चालू हुआ, अरे बढ़ गया राहुल, अभी क्या करे, इसको इधर करे, इसको इधर करे, इसको इधर करे, कुछ नहीं करने का. अच्छी चीजें लेके बैठा है, कंटिन्यू करो, यू विल डेफिनेटली रीच योर डेस्टिनेशन. Right, sir. So guys, I think I took so much time today. Sorry. No, it's okay. I think these were valuable insights. And when it is about money, emotions flow. So that's all right. Yeah, I think we can end on a note that we all will think about it. We all will try to take a decision and, of course, consider all the ideas that have been given. Sorry, Matthew, sir, you सुविधा, wanted to say? No, I Yes. think no, So- Rahul will be having hands is full क्योंकि उनको फोर्थ सुविधा, बहुत जाएगा अभी. Yes, Sumita, yes. We'll I have more wanted to questions. share. I'll share with one slide actually, which is very important, right? Let me just. So, अगर किसी को ऐसा लगता है कि one sec. This is my last slide. Right? You can be young without money. You cannot be old without it. पैसे बहुत जरूरी है. और अगर किसी को रिग्रेट हो रहा है कि राहुल यार ये सेशन पहले किया होता तो इट वुड हैव बीन, मतलब वो मेरी लाइफ में कुछ और हो सकता था. राइट? डोंट रिग्रेट, बिकॉज रिग्रेट विल नॉट चेंज योर पास्ट एट ऑल. राइट? But then, okay, yeah, let me start investing. But the moment you start investing, now anxiety आएगी. But anxiety will not change your future. It will not change your future. Then what? Action लेके बैठे रहो. Reason, because action will change everything in your life. ये ध्यान रखना है. बाकी सब मिथ्या है. बाकी सब मिथ्या है. Yeah, Very true, sir. Very Yes. true. What you're saying is true. yeah, please. यस I मैथ्यू think सर, that आप कुछ बोलना चाहते थे? मैं एक्चुअली बोल रहा था अभी क्वेश्चन काफी आ गए हैं तो मैंने नॉट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम. एक बात जो स्टक में उसकी गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रवीण सर वाज टेलिंग इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट लगा मेरे. आई डिडंट कुड कनेक्ट टू इट. फॉर गोल्ड? गोल्ड, या. So what he says that in 2012 the price of gold is 33,000, या. and today even after 13 12 12 years. years 12 years it is 66,000. It means that it Okay. is double in 12 years. ओके. Now on this answer, if you put 1 lakh rupees in fixed deposit over a period of that time with 8.5% interest, Would have तो वो got पैसा more. शायद आपका 10 साल में डबल हो गया होता. Okay. आपने इक्विटी में पैसा डाला होता अगर 2012 में, तो Okay. वो पैसा, जैसे आपका गोल्ड 1 करोड़ का 2 करोड़ हुआ, एफडी का पैसा 1 करोड़ वाला 2.5 करोड़ हुआ, यहाँ आपका इक्विटी का पैसा 1 करोड़ का 8 करोड़ हो चुका है. So he said that generally gold will deliver over a period of good years of time maximum double digit return. अच्छा. Gold is a passive investment. I'm not saying करना नहीं करना अलग चीज की बात है. No, But two asset class which I always suggest to my client is one, land, raw land, no constructed property Okay. for a good period of time, and equity. If you mix these two investment articles in your portfolio on a very good way, I'm talking about 70, 80, 90% of your portfolio. So you will end up with more than 15, 20% CAGR for 15, 20 years period of time. So 20% रिटर्न अगर आपको 20 साल में मिलता है सर, एवरी 3 साल में 3.5 साल में पैसा डबल होता है. 20 साल मतलब, तो आप समझ रहे हो 3.5 साल में 2 रुपया हुआ, 7 साल में 4 रुपया हुआ, 14 साल में 16 रुपया हुआ, 20 साल में अंदर 64 रुपीज होगा. 1 करोड़ का
64 crore at 20% CAGR in 20 years. ये और कोई asset class नहीं दे पाएगा. नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, साउथ इंडियंस वी आर समहाउ stuck with gold. Gold, I wanted a clarification on that. So better to get clarified than being that. Matthew, is it you or this question is pushed by Bobby? No, not Bobby. It typically, I think the number of women in India have more gold than other countries all over the world. And typically, Matthew. Malayali female has got more gold. Yeah. Matthew, Your let me share about perception. the South Indian This- also. Let me share Let for us the ask South this Indian question also. from Sumita, no? Sumita and Preeti. Oh, look, I the have gold. no gold. Yeah. I don't buy Uh, gold. I have no gold at all. I have only the gold which was given to me by my in-laws. That's in locker. Yeah. Locker enjoy. gold. Please enjoy. Please enjoy. Don't आपका लॉकर एंजॉय नहीं करना चाहिए. नो प्रॉब्लम हो सकता है. Correct. Yes, sir. So thank you so much. It was really nice that you Pleasure. got on the concepts part of it. Okay, now we'll have to work on it. It was really Yeah, very absolutely. educative. Yeah. I think we would need a follow-up session once we all finalize what we want to do, build our portfolio, or maybe seek advice from some of you or others. So a follow-up session would be required, and we'll keep you So posted. in smaller sense, if anybody would like, because this is a recording thing, so in last line, if anybody would like to take a second note, second opinion on their investments, I'm happy to give my inputs and suggestions. So do wherever you are comfortable, start with them, end with them, but just in a second opinion, if you would like to know about your existing investment pattern or style, then I'm very happy to help in that manner, where I think my knowledge is a bit high compared to others. So thank you so much. Yeah. That's what I told. You'll be getting more calls now than before. Thank you so Yes. much, everyone. Have a wonderful Yeah. weekend. Enjoy your Friday. Yeah. And Thank you. thank you, Yeah. Praveen and Thank you. Rahul. Thanks, sir. Thank you so much. Sharing Thank so you. much Praveen of sir. Thank Thanks, you. Rahul. Thank you Thank so you, much. Thanks, everybody. Sumita. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you. Happy Bye. weekend. Good night. Thank you, Rahul, Praveen, Preeti is Sumita. always Thank you. smiling.